بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ الیکشن کمیشن کا 4-1 کی اکثریت سے سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی نشستیں دیگر پارٹیوں کو دینے کا حکم۔ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے قبل خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی جو کہ لازم تھی۔ فیصلہ مخصوص نشستوں کی فہرست انتخابات سے قبل فراہم کرنا قانونی ضرورت ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا بروقت مخصوص نشستوں کی فہرستیں مہیا نہ کرنا قانونی نقص ہے۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کے معاملے پر اختلافی نوٹ لکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں میں بھی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ نشستیں آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت خالی رکھی جائیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیصلے کے بعد سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہماری اپیلوں پر فیصلہ ہونے تک صدارتی اور سینٹ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا الیکشن کمیشن غیر آئینی فیصلہ دینے پر مستعفی ہو۔ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ تو ہم ڈیمانڈ کریں گے آج کے دن اس ہاؤس سے کہ پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فی الفور ان کو ریزائن کیا جائے، اور یہ سینٹ کی طرف سے یہ ریزولوشن ہم تیار کی ہوئی ہے، ابھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ 1 منٹ بھی اس عہدے پہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اس فیصلے کے بعد اتنا سیریس غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ، اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین، یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے اگلے جانے کے ممبر، تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ، پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ اسی پر بات کریں گے، ماہر قانون اشتر اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایڈوکیٹ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر صاحب، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی یہ درخواست مسترد کی ہے اور 4-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور جو وجہ اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے قبل خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی جو کہ لازم تھی اور قانونی ضرورت تھی۔ قانونی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، قانون کے مطابق کیا ہے، آئین کیا اس کے بارے میں کہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ الیکشن کا ایک معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جس کو یہ معاملہ تفویض کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کی یہ پاور ہے، جوریسڈکشن ہے، بٹ آبلیگیشن بھی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرائے۔ اس سارے الیکشن کا جو پہلا پروسیس ہے وہ ہے جو 1 man 1 vote کے حساب سے، اور جب وہ 1 man and 1 vote کے متعلق بات آتی ہے کہ آپ جو ہے ووٹ ڈالیں گے اور اس کے تحت لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، اسی مرحلے میں جب آپ کے نامینیشن پیپر مانگے جاتے ہیں تو تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لسٹ لیں، اور وہ لسٹ ٹینٹیٹیو لسٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ کس پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کی، تو اس تناسب سے ان کو پھر وہ مائنورٹیز کی اور خواتین کی وہ نشستیں الاٹ ہوتی ہیں۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ الاٹمنٹ ہے، اور یہ الاٹمنٹ ہے
तनासब के हिसाब से जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में तक पहुंच जाती है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, नंबर वन, तहरीक इंसाफ की तरफ से लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक, आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े और उन्होंने पहले शॉपिंग की कोशिश की। और शॉपिंग क्या थी कि पहले वो एक और पॉलिटिकल पार्टी के पास गए और जब वहां पे क्रिटिसिज्म आया उनके खिलाफ तो फिर वो दूसरी एक और पार्टी के खिलाफ गए। जो उनसे गलती हुई है और फाश गलती हुई है, उनको शायद ये एहसास होगा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद है, ये जो जमात है, इसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। तो पहली बात ये कि उन्होंने कोई, आप समझते हैं कि ये अलॉटमेंट ना होना दुरुस्त फैसला है? जी बिल्कुल, ठीक है, मैं समझता हूँ ये फैसला दुरुस्त है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद हैं हाफिज एहसान एडवोकेट, उनसे बात करेंगे। हाफिज साहब, ये बताइएगा, माजी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी ये मामला हुआ था, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी गई थी, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जिस प्रेसिडेंट की तरफ रेफर किया जाता है बाप ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पाकिस्तान के 2018 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के तौर पे हिस्सा नहीं लिया। ना उन्होंने पंजाब में हिस्सा लिया, ना उन्होंने KPK में लिया, ना उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर लिया और ना उन्होंने सिंध लिया और ना ही नेशनल असेंबली के अंदर लिया। और बल्कि ये है कि उनके अपने प्रेसिडेंट ने जो इलेक्शन लड़ा वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ा। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 फरवरी 2024 को एक उन्हें लेटर डाला विद रेफरेंस टू सेक्शन 206 जो था, उसके अंदर उन्होंने दोबारा रिट्रीट किया कि हमारी पार्टी ने एज ए पार्टी जो है पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा हमारे ऊपर सेक्शन 206 जो है वो अप्लाई नहीं करता। इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 जो है वो बड़ा वाजे है कि पाकिस्तान के अंदर जो 70 रिजर्व सीट्स हैं नेशनल असेंबली की और उसके अलावा जो 106 के अंदर प्रोविंसेस की सीट है उनको किस तरह एलोकेट किया जाता है। अब उस एलोकेशंस के अंदर जो डिटेल है वो सेक्शन 104 के अंदर है और वो ये है कि आपने जब जनरल इलेक्शन के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जाना है तो आपने रिजर्व सीट्स जो है उसी तरह इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जमा करवानी है जिस तरह पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन है, और वो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसकी उसी तरह स्क्रूटनी होगी जिस तरह दूसरे, और आर्टिकल 62 उन सारों पे अप्लाई करेगा। अब ये है कि इस केस के अंदर जो जनरल इलेक्शन के अंदर था कि इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं करवाई। अब दूसरा इसके अंदर ये है कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जाएगा कि जो जनरल इलेक्शन के अंदर किसी न किसी एक सीट भी जीत के नेशनल असेंबली के अंदर आए या प्रोविंसेस के अंदर आएगी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई भी एक सीट जो है वो नेशनल असेंबली के नहीं है। तीसरा उसके अंदर ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस मौजूद ना हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल नहीं है। और दूसरा साइमल्टेनियसली ये है कि क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनरल इलेक्शन के अंदर हिस्सा न लिया हो और वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिला के एक पार्लियामेंट्री प्रेजेंस बना सकती है? तो उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ये अलाउ नहीं है कि जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद जो है वो अपने कैंडिडेट्स को फिर तीसरा इसके अंदर ये है कि आपने वो सीट्स देनी किनको हैं? आपने उनको सीट्स देनी है जो वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी लिस्ट देगी। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट ही नहीं दी जो आर्टिकल 57 सेक्शन 57 58 के मुताबिक जो इलेक्शन शेड्यूल आया हुआ है और उसको आपने देना था जनरल इलेक्शंस के अंदर जो 22 पहले डेट थी फिर 24 तक उसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर तक। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक किया है और उसके अंदर बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। अशतर और साफ मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, हमें ताज़ा सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे।
वेलकम बैक। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया है। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे, जहां उन्हें मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले नहीं हैं, इसलिए उनकी हलफ बर्दारी में जाना मुनासिब नहीं समझा। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि करप्शन मरीम नवाज की रेड लाइन नहीं है, क्योंकि उनका खानदान करप्शन का मुअज्जिद है। मरियम ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं मरियम अखबार में क्या कहूँ, आपकी रेड लाइन क्या होगी सूबे में? हमारी ओरिजिनली रेड लाइन है और ये तो करप्शन के मुअज्जिद हैं, तो इनको कहो कि अगर अल्लाह करे कि इस्लाह इनकी हो जाए और इस्लाह के बाद अगर रेड लाइन को ड्रा करते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह से खरबों रुपए खाने के बाद, तो हमें खुशी की बात। पीएम बर्दारी असल में वो पीएम जो है ना, वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना असल में। तो बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि वाकई आवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से झोली फैलाकर दरख्वास्त करते हैं कि जमात इस्लामी को सहूलत दें, वो फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का इलाज करना चाहते हैं। सेनेट में गाज़ा की सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि गाज़ा की सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा बुरी है जितनी कि मीडिया में आ रही है। मेरी पार्टी जख्मियों को उठाना चाहती है। इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल कायरो में बैठे हुए हैं। मैं खुद गजा बॉर्डर तक गया हूं, मैं खुद गया हूं। जो कुछ मीडिया में आ रहा है सूरत हाल इससे बदतर है जो मैंने गजा के बॉर्डर पे देखी है। हमें डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दो, हमें स्टेट कवर दो, हम उन बच्चों को निकालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौजूदा हुकूमत जो वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया है, इसके सामने हाथ फैलाता हूं, जोली फैलाता हूं। खुद कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब, हमें फैसिलिटेशन दो, हम अपने खर्च पे लोगों को उठाएंगे, अपने खर्च पर इलाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली हंगामाराई पर गुस्से में आ गए। अपोजिशन अरकान ने नारे लगाते हुए कहा, ये कौन होते हैं हमें आइन और जमहूरियत का लेक्चर देने वाले, जो आज यहाँ शोर मचा रहे हैं। उन्हें 6 माह पहले आइन और जमहूरियत याद आई। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ इन कार्टून्स का भी फ़र्ज़ है। तकरीर के कुछ देर बाद बिलावल ने स्पीकर से नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने की दरख्वास्त कर दी। बिलावल ने कहा कि वो खुद कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दें, ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। अपोजिशन रुकन असद कैसर ने साइफर के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। असद कैसर ने सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि कल ये पैगाम दिया गया कि जो असम्बली में तकरीर करेगा उसका ये अंजाम होगा। कौमी असम्बली से खिताब में असद कैसर ने कहा कि न वो उन हथकंडों से झुकेंगे ना उनका लीडर झुकेगा। आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और सिविलियन बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि वो फॉर्म 47 वाले नहीं बल्कि 1947 वाले हैं। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि PTI को जैसे 2018 में जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह हरवा दिया गया है। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, फॉर्म 47 नहीं 9047 हमारी शनाख्त है। अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है, तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था 24 में उस तरह हरा दिया गया है। ये मिलकर बात करना चाहिए। जिसने आपको जितवाया था उसने आपको हरवाया हो, अगर आपकी बात सही है तो। 18 में आप जीते थे, 18 में आप जीते थे क्या?